जो जनता चाय का आनंद ले रही है वो लोग भी आ सकते हैं आराम से। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ कॉन्क्लेव स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ी भीड़ बढ़ गई है, संडे को लोग उठ के आ गए हैं और भी। मैं जनरली ना, जब मेरी वाइफ नहीं रहती है तो मैं बहुत जोक मारता हूँ स्टेज पे। अभी मेरी वाइफ है आज यहाँ पे, तो मैं एक ही जोक मार के सेशन आगे बढ़ाता हूँ। आप कपिल शर्मा जैसे हो। नहीं नहीं। सो मैं अपनी वाइफ को इंट्रोड्यूस कर रहा था 2-3 सीनियर से कि ये मेरी वाइफ है। तो मेरी वाइफ बोल रही कि यार तुम वाइफ बोल के इंट्रोड्यूस मत करो। तो अगले सीनियर आया तो मैंने बोल दिया अभी कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो मेरी वाइफ और ऑफेंड हो गई। तो इसका अभी तक आई मेट माई वाइफ 18 years ago when I was first year cadet। अभी तक मैं डिकोड नहीं कर पाया हूँ कि इसको क्या पसंद है, बट आई गेस दैट्स द फन ऑफ बीइंग इन लव एंड बीइंग इन मैरिज। एंड ऑन दैट नोट मैं बहुत हैंडसम कैप्टन को बुलाना चाहूँगा, कैप्टन कुणाल उनियाल, who is doing an extraordinary job in maritime field, running a company called IME। तो अपनी कंपनी के बारे में वो भी बताएंगे। And we are really grateful that he has taken out time to be here with us today। Round of applause for Captain Kunal। Ladies and gentlemen, so I am Kunal Narayan Unyal। सेशन शुरू करने से पहले आई विल टेल यू कि टिल लास्ट इवनिंग आई वाज इन कश्मीर, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नॉट एज अ टूरिस्ट। आई वाज इनवाइटेड बाय द स्टेट and I had sessions in almost 10 colleges and university because we are introducing commercial shipping operations in the state of Jammu and Kashmir। Imagine ship brokering, ship chartering, vessel operations in University of Kashmir, Islamic University। And if I'll tell you which all cities I've been to Uri। In fact, I was so close that I could see Pakistan border out there with a checkpost। I went to Sopore, Avantipura, Pahalgam, Pulwama। आप लोगों ने सबने न्यूज में सुना होगा। I've been there। अभी मेरा कल शाम की लैंडिंग थी। So my journey started। I'll make this session very very casual and very very interesting rather than telling कि ये करना है वो करना है। वो आप लोग सब बहुत इंटेलिजेंट हो, आप सब कर सकते हैं। So I started my career as a deck cadet with Univan Ship Management, and from day one I realized one thing, that to do something differently, to grow, to become you, your individuality, you have to think differently। सेलिंग करता ना और कमांड भी मिल गई, but one incident that happened with me on ship actually shook me। Every day, every morning, evening, I used to get a very nasty email, sometimes from the owners, sometimes from the charter, mostly from the owners। What are you doing there? Why the ship is not going there? And I always used to think, who are these intelligent people? Who are these people who are actually telling me how to command a ship? Because technically we all know master is no longer commanding the vessel. It is people ashore who are doing that। So one fine day, owner's representative came on board, and two young guys, I think 20-21 साल के होंगे, 21-22 के, they were coming on board। This came up to gang me, and I was like, you? He said, Captain, I'm Philip, and the other one was Matthew। I said, you are the one who was sending me this email? Yeah, we are the one। Then I asked him, what are you doing? आपने क्या पढ़ाई करी है ऐसे कि आप उस पोजीशन पे हो कि you are telling me what to do? They did their graduation and post graduation from maritime logistics, port management, Plana Dhamkana, and they're sitting with the owners and they're commanding us। That was the time I decided I need to quit sailing। मैं गलत जगह आ चुका हूँ। That was the time। So in 2016
हाँ, एक और चीज थी, आई रियलाइज वन थिंग दैट मनी का जो फ्लो है वो जहाज से जमीन पे नहीं होता है, जमीन से जहाज पे होता है, सैलरीज जमीन से जनरेट होती है। तो समबडी इज पेइंग मास्टर 15,000 20,000 USD, वो खुद कितना कमा रहा होगा? सो दैट वाज द रियलाइजेशन व्हिच केम। सो आई क्विट सेलिंग 2016 एंड आई वेंट टू, एक और चीज था कि अब रियलाइज हो गया था कि पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। समझदारी तभी आएगी जब एजुकेशन नॉलेज होगी, और वो तब आएगी जब क्वालिफिकेशन मिलेगी। सो आई वेंट टू लंदन, कार्डिफ यूनिवर्सिटी। एक बार ट्राई किया, दो बार ट्राई किया, तीसरा बार हो गया मेरा। सो आई डिड माई मैरीटाइम लॉ फ्रॉम देयर। माई स्पेशलाइजेशन इज इन कमर्शियल एंड ट्रेड लॉ। Cardiff University, top 100 universities in the world. And luckily, I topped the university. And because of that, I got an opportunity, I got a job in Baltic Exchange. So, I think I'm the only one in this room जिसने Baltic Exchange में काम किया। हमने सबने सुना है Baltic Exchange के बारे में, ये होता है exchange यहाँ पे होता है, मैंने काम किया, I worked there in Baltic Exchange. And it was during that time that this concept came in my mind कि why do we have to go to London, Europe for higher educations in commercial operations? प्रीसी वगैरह तो कर लोगे आप इंडिया से, ब्रोकरिंग चार्टरिंग के प्रोग्राम्स तो होते ही नहीं है ना। सो दैट वाज अ टाइम, पीआर थी मेरे पास, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दिया था, एंड आई वाज हैविंग अ वंडरफुल लाइफ। वाइफ बच्चे सब सेटल, स्कूल जा रहे थे। आई केम बैक टू इंडिया। आई एम फ्रॉम देहरादून, पहाड़ी हूँ, पुनियाल। सो दैट वाज अ टाइम आई केम बैक टू इंडिया विद अ विजन that let's bring and start something new जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया हो। So I am the founder of International Maritime Business Academy, IMBA, India's one and only college dedicated to commercial shipping operations. It's been 7 years that college has came into existence, and we are a full-fledged degree college with undergraduate, postgraduate programs, BBA, PGDM, MBA, PhD in ship brokering and chartering, vessel operation, maritime law, and etc. etc. And it didn't stop there. Another thing that I've realized during my stay in Baltic Exchange, that shipping is still 50 years back from what is actually happening right now. 50 साल पीछे चल रही है shipping. So I got in touch with my co-founder विकास गड्डू, जिसका शिपिंग से कोई मतलब नहीं है, एक्स इन्फोसिस, ब्रिटिश टेलीकॉम, वोकस, नेशनल ब्रॉडबैंड एंड ऑस्ट्रेलियन नेशनल। एंड आई टोल्ड हिम, यार ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। $3.5 मिलियन का कार्गो अगर मैं एक्सेल शीट पे बैठ के कैलकुलेट कर रहा हूं तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। अगर मुझे फिक्सर करने के लिए इफ आई हैव टू मेक अ फोन कॉल या ईमेल करना पड़ता है, व्हाट्सएप करना पड़ता है, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। Why it is not digitalized? And he was like, यार इंडस्ट्री तो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, ये अभी भी वही है। मैंने बोला ये वही है। So that was the time that vision of integrated maritime exchange came to build India's first and world's largest digital maritime exchange, one-stop solution, an AI-enabled platform for commercial operations, starting from chartering to claims, happening seamlessly. So 2023 we laid the foundation of IME. ये IME चल रहा है, वो कॉलेज अपना है, वो ऑटोनोमस है अपनी। बाय द वे इट्स एफिलिएटेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, वो अलग चल रहा है। तो इसमें हमने 2023 में स्टार्ट किया एक टूल के साथ जो था लेस्पैन, ले टाइम कैलकुलेटर। वो क्या करता था, वो मैनुअली ले टाइम कैलकुलेशन करता था। So from then till now we have developed 12 tools which includes 10x for chartering, Navitron for voyage estimation, Oceanova for passage planning, Seal for post-fixture operations, LaySpan 2.0 with 97% accuracy. Human accuracy is 93%. हमारा जो LaySpan है, technically it's only platform in the world, India तो छोड़ो, मैं world कह रहा हूँ, which does automated data calculation with 97% accuracy. You have to just upload your statement of facts and charter party. Charter party means it can be recap, it can be main term, and the AI has been trained to such an extent कि अगर आप पेन पेपर लेके डॉक्टर्स की राइटिंग में भी लिखेंगे, ये उसको भी रीड करता है, like a lawyer, like a maritime lawyer. It took us 2 years to train it in such a fashion कि अब
इट इज लाइक कि एक मैरीटाइम लॉयर बैठ के ले टाइम को एनालाइज कर रहा है विद केस लॉज एंड ऑल, विद वेदर इंटीग्रेशन। उसके साथ साथ वी हैव गॉट मार्केक्स, अनदर टूल व्हिच डज मार्केट एनालिसिस अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स। एआई इतना एडवांस लेवल पे उसका करता है कि एवरी डे इन द मॉर्निंग यू विल गेट टू नो कि अगर मुझे एक हैंडी साइज या सुपरमैक्स वेसल फिक्स करना है तो शुड आई डू इट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू साउथ अमेरिका, और शुड आई डू इट फ्रॉम यूरोप टू यूएस गल्फ और यूएस गल्फ टू चाइना, because it will tell you, analyzing market across various platforms, that this is the best solution for you. So that is integrated maritime exchange. We have been supported and backed by government of India. क्यों? क्योंकि maritime vision 2030 is already into place and now they want India का अपना digital platform होना चाहिए। पहली चीज। दूसरी चीज, we have been supported, funded by central government तो है, state government also, and I was lucky enough कि I got an opportunity to represent startups to meet our honorable Prime Minister PM Modi, and I represented them. Closed door हमारी मीटिंग हुई थी and I presented this idea to him, और उनका एक ही सवाल था, कह रहे पहाड़ों से कोई जहाज कैसे चला सकता है? देहरादून से, we are based out of देहरादून. Imagine companies based out of US, Greece, Singapore, they couldn't crack this code. अभी भी चल रहा उनका, एक एक टूल सबने कुछ ना कुछ बना रखा है, हमने इंटीग्रेट किया है. So I told him it's because of AI, because of digitalization. We are based out of Dehradun and we are running vessels from there. And आज है 17 तारीख, 19 तारीख को इंडिया के मैरीटाइम इतिहास में आपको बहुत बड़ी खबर मिलने वाली है. अभी लीक नहीं करी हमने, वो न्यूज़पेपर्स में आपको पता चल जाएगा. There is something very big happening and we are leading that. So आइडिया बहुत सिंपल है. आपके जैसे मरीनर था, सेलिंग कर रहा था, लेकिन ये रियलाइजेशन बहुत जल्दी आ गया था कि पहली चीज, अगर आपको एक ग्लास को में पानी भरना है तो पहले उसको खाली करना जरूरी है. कैप्टन अच्छा लगता है, कैप्टन, पर हम सबको पता है कि हम क्या है, क्या करते हैं. पहला चीज भूलना पड़ता है. ये मुझे यूनिवर्सिटी में सीखा मैंने जाके, कार्डिफ यूनिवर्सिटी में बड़ा ब्रैक करता था. तो पहली चेयर पे बैठता था, सारे मेरे साथ ग्रीक्स थे, एंड उसको ब्रैक, आई एम कैप्टन. तो एक दिन प्रोफेसर साहब आए क्लास में, उन्होंने मुझे बोला कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन इन शिपिंग? आई सेड सर, कमांड वेसल. ही सेड एवरीबॉडी इज कमांडिंग 58,000 वेसल, सब कमांड कर रहे हैं. व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन? I was unable to answer because he saw that attitude. He said, सोलास पढ़ी है? मैं बोला हाँ सर, बिल्कुल पढ़ी है सर, हम पढ़ते हैं. क्या एसटी से कह रहा, मैंने लिखी है. And he said, मैंने आज तक कभी जहाज देखा नहीं है. Imagine. He said, people like us, we run your ship. You are nothing. That is the time we realized कि no, we have to change that attitude. We need to understand. हाँ, सेलिंग करें ठीक है, जैसे जमीन पे आए अपने एटीट्यूड चेंज कीजिए. आई वाज जस्ट हियरिंग फ्रॉम प्रतीक, वेरी गुड थिंग, कि जब आप जमीन पे आते हैं तो आपको वो सब भूलना पड़ता है पीछे का. आपकी सैलरी, 4 साल बेरोजगार था मैं, 4 years बेरोजगार छोड़िए, अपने पॉकेट से कार्डिफ यूनिवर्सिटी 40-45 लाख खर्च करके, और लोग मुझे कहते हैं, आर यू मैड और व्हाट? एक तो सेलिंग छोड़ दी, इतना अच्छा करियर था, सब छोड़, ऊपर से पैसे भी लगा रहे हो, किस लिए? पढ़ाई क्या करोगे पढ़ाई करके? एंड ऑलवेज यू शुड टेल देम, हमने आज तक अपने पे पैसा खर्च करा कब है? कभी भी हमने अपने पे पैसा खर्च करा है? जमीनें, मकान, गाड़ियां, वो सब ठीक है, पर हमने अपनी पढ़ाई पे तो कभी खर्च करा ही नहीं है. ये तो मेरे को पहला मौका मिला था कि 12वीं के बाद मैं किसी कार्डिफ यूनिवर्सिटी जाके पोस्ट ग्रेजुएशन करके मैरीटाइम लॉ कर सकूं. और उसकी वजह से आपका विजन चेंज होता है, क्योंकि पढ़ाई बहुत फर्क लाती है आपके अंदर. वो आपका एटीट्यूड चेंज करती है, कॉन्फिडेंस लाती है, और फिर उसके बाद आपके अंदर विजन आता है, आपको रियलाइज होता है कि हाँ, आपको चला कर सकते हैं. तो आज हम वो लोग हैं कि जो सैलरी रिसीव नहीं करते, पर हम सैलरी देते हैं, क्योंकि वी डिडंट गेट स्टक विद द 10-15,000 USD. वी न्यू कि हमें 20,000 USD नहीं, $2 million USD चाहिए. सो दैट इज एन एटीट्यूड व्हिच यू नीड टू कैरी. राइटर भी हूं, आई एम अ पोएट. People call me as Captain Kavi. 19 books I have written. Celebrated writer, appreciated by Queen Elizabeth, Mayor of London. Books published भी हुई हैं, bestsellers भी है. Recently I signed a contract with Viacom. मेरा एक novel है.
उसको यार सीरीज बन रही है। तो आइडिया क्या है कि डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ, एक्सपैंड। अभी एक नॉवल एक और आ रहा है मेरा अगला महीना। लोग कहते हैं यार तू 2 कंपनियां चला रहा नॉवल। मैंने बोला कंपनियां तो पेट के लिए चला रहा हूं, आत्मा के लिए क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग फॉर योर सोल? एंड दैट्स व्हाट मेक यू ह्यूमन बीइंग, दैट्स व्हाट व्हाई पीपल लव यू, बिकॉज उनको पता है कि यार ये कुछ अलग करेगा। एंड एवरी टाइम इट इज लाइक अब क्या होने वाला है, अब क्या करेगा। एंड दैट्स व्हाट आइडेंटिटी इज। भीड़ के साथ सब चलते हैं, कहते हैं ना मैं अकेला ही चला था गालिब मंजिल नजर, लोग आते गए और कारवा बनता गया। तो 2 ही मौके हैं, या तो कारवा बन जाओ या कारवा को चलाने वाला बन जाओ। तो दैट्स व्हाट इट इज। थैंक यू सो मच प्रतीक फॉर द अपॉर्चुनिटी कि मैं आ पाया आप लोगों से इंटरेक्शन करने। एंड वेट कीजिएगा 2 दिन बाद का, यू रीड इट इन द न्यूज़पेपर्स, क्या होने वाला है। याद रखिएगा इंटीग्रेटेड मैरीटाइम एक्सचेंज। नेक्स्ट टाइम जब आप ये सुनेंगे आपको पता चल जाएगा मैं स्टेज में क्या बोल रहा था। थैंक यू सो मच। और डू प्रतीक। थैंक यू कैप्टन कुणाल फॉर लाइक एन ऑसम सेशन। क्योंकि यहाँ पे तो जितने भी लोग हैं उन्होंने काफ़ी अचीव किया है, तो आई गेस देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम देम। मैं चाहूँगा कि कैप्टन ध्रुव को और कैप्टन उनियाल को विनर से फेलिसिटेट कर दें, तो इट विल बी आई गेस अ गुड मोमेंट, फोटोग्राफिक मोमेंट फॉर देम एज वेल एज अस एज वेल। Before I call the next speaker, क्योंकि को स्पॉन्सर हमारे तारा देवी ग्रुप वाले हैं, तो मुझे लंच के पहले एज पर एग्रीमेंट 30 बार नाम लेना था। तो मुझे बोला गया, मैंने 15 बार ही लिया है। सो वंस अपॉन ए टाइम इन शिमला बहुत लैंड हुआ करता था, अब वो सारा लैंड तारा देवी ग्रुप के पास है। बट आई वुड लाइक टू कॉल आद्या मैम कि वो तारा देवी की स्टोरी सुना सकें। उसके पहले मैं एक छोटा सा वीडियो प्ले करूंगा। है ना, इस जर्नी में अजीत आ जाएंगे लंच के बाद, तो आपको पता चलेगा कि क्या है कि उसने बैंक क्लर्क से स्टार्ट किया एंड दे स्ट्रगल्ड अ लॉट व्हेन दे लेफ्ट देयर जॉब, इधर उधर से पैसा लेके। तो अजीत बताते थे कि, एंड अजीत मैं बोल रहा हूँ, तो ही इज आई गेस मोर देन लाइक 51 करंटली, अजीत 51, और ये 7-8 साल पहले ही स्टार्ट किया आपने। हाँ, तो उस समय जॉब उन्होंने छोड़ा। तो बोले जब मैं बॉम्बे जाता था तो आईआईटी बॉम्बे के बच्चों के हॉस्टल में उनको 500 रुपया देकर रुकता था। एंड द गाय हु हैड बीन इन लीडरशिप ऑफ बैंकिंग सिस्टम्स, व्हेन ही स्टार्टेड एंटरप्रेन्योरशिप, वो भी इस लेवल पे अपनी कॉस्ट कटिंग कर रहे थे। सो उस स्ट्रगल को देख के आज इंडिया में सबसे बड़े बिल्डर नहीं, बट शिमला में हैं सबसे बड़े लोग। सो इफ अगर आप गुड़गांव के हो तो गुड़गांव में डीएलएफ, कमीलियाज, मैग्नोलियाज ये सब है। इनका प्रोजेक्ट सिमिलर माना जाता है क्योंकि वहां पे आ ही नहीं सकता आप कोई, देयर इज नो लैंड इन शिमला, ऑल द लैंड इज ओन्ड बाय तारा देवी ग्रुप ओनली। सो मैं बुलाना चाहूंगा मैम को, अजीत सर की वाइफ है, an XLRI pass out banker herself, and they run a very tight show। तो उसका एक ना, कई बार आपको ऑर्गेनाइजेशन के टॉप पे इतने अच्छे लोग मिलते हैं तो आप समझ जाते हो व्हाई दे आर सो सक्सेसफुल। आशुतोष सर बैठे हैं, विनय सर बैठे हैं यहाँ पे, द सेम, ये ना सेम चीज है, द सेम ट्रेड्स।
आई सी अक्रॉस अजीत सर व्हेन आई एम टॉकिंग टू हिम, कोई घमंड नहीं, किसी में कोई घमंड नहीं। जिसमें घमंड होगा वो तो बड़ा बन ही नहीं सकता है। मुझे लगता है कि ये ट्रेड बहुत कॉमन है, और एंड दे आर विद नॉट, तो ना इतना सिंपल तरीके से मिलते हैं ये लोग। आशुतोष सर को कभी भी फोन कर देता हूँ, विनय सर को फोन करता हूँ, उठाते नहीं है, तो विनय सर के जूनियर है हरीश सर, उनको मैं रीच आउट करता हूँ, तो हरीश सर इज हियर समवेयर, हाँ हरीश सर है, तो मैं जब विनय सर की कंप्लेन करनी होती है सीधा उनसे करता हूँ, बट विनय सर इज ऑलवेज देयर फॉर अस, फॉर आवर कम्युनिटी। ये एंड कोई भी अगर किसी को कोई भी हेल्प चाहिए तो यूएमएस डोर्स आर ऑलवेज ओपन, एंड दैट इज आई गेस द कल्चर वी शुड build our organization. The same goes for Tara Devi Group. एकदम अलग इंडस्ट्री, the same goes for Buddy for Study. एकदम अलग इंडस्ट्री, the culture is very very identical. काम को लेके ethics are very high and value system बहुत strong है। तो I guess मेरे पास ना learning curve बहुत रहते हैं, थोड़ा बहुत जो सक्सेस मिली है इन्हीं लोगों की वजह से मिली है, क्योंकि I spend lot of time with them. एआई की बहुत बात करते हैं हम लोग, एआई ये एआई वो, एआई में ये कर रहे हैं, सो आई बीन इन टेक फॉर आई गेस ऑलमोस्ट 10-15 years नाउ। टेक में एंट्री मेरी कैसे हुई थी कि मैंने एक आदमी को 20 लाख रुपया दिए थे एक वेबसाइट बनाने के लिए, वो वेबसाइट बनी नहीं थी पर मैं टेक सीख गया। ठीक है, सबकी जर्नी ऐसी है, मुझे लगा जो भी टेक में घुसते हैं वो इवेंचुअली टेक सीख जाते हैं किसी को पैसा देके, एंड देन आई हैव अ नैक ऑफ फाइंडिंग टैलेंट। तो ये जो ये लड़का आ रहा है ना यहाँ पे, तो अगर आप टेक में किसी को कंपेयर करना हो तो मैं मानता हूँ कि सैम अल्टमैन इज अ गुड टेकी, तो ना उसका कंपैरिजन नहीं है टेक में। अगर सैम अल्टमैन कभी इंडिया का बनेगा तो यही लड़का बनेगा, और इसको पकड़ लिया मैंने अब, एंड दैट इज अ काइंड ऑफ टैलेंट वी हैव इन इंडिया, बट व्हेन यू फाइंड वन, ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं है, साम नाम दंड भेद रखे रहना है। So this is a project in न्यू शिमला, 7 एकड़ लैंड, बहुत इम्पॉसिबल टास्क है वहाँ पे। बट उसके पहले एक पॉइंट है कि एक एग्जांपल है कि गुड़गांव एनसीआर इम्पॉसिबल होता है रियल एस्टेट परचेज करना एंड यूजर के लिए। सो मेरी वाइफ ने एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया था, 1 करोड़ में बहुत छोटा सा घर मिला था तो कुछ साल पहले, वो रेंट पे है, तो उसको
12,000 रुपये रेंट मिल जाता है उस घर से। वो घर इतना छोटा है कि मैं घुस नहीं सकता था, तो हम लोग रहते नहीं है। एंड अब तो उस 1 करोड़ में भी कुछ नहीं मिलता है आपको गुड़गांव में। आपको टिकट साइज वेयर यू वांट टू, एक्चुअली मुझे जहाँ रहना है वो 20 करोड़ का हो गया है गुड़गांव में, जो मुझे अच्छा लगता है, तो उसमें रेंट पे रहना ज्यादा बेटर लगता है। बट दैट इज वेयर टायर 2 टायर 3 cities in India have cropped up, जहाँ पे आपको कम इन्वेस्टमेंट में यू गेट गुड रिटर्न। वन एग्जांपल है शिमला, जहाँ पे आप 1 करोड़ का अच्छा फ्लैट लेके, even if you're running on Airbnb, you get 5,000, 6,000 per day with 60-70% occupancy throughout the year. हवा भी अच्छी है वहाँ पे। गुड़गांव में तो हम लोग अपनी लाइफ का 10 साल कम कर रहे हैं। The same goes for cities like Andaman, Goa, places like Andaman, Goa, जहाँ पे थोड़ा आपकी लाइफ इनरिच हो जाएगी। बट इफ यू आर वर्किंग इन गुड़गांव, जैसे हम लोग का काम है, तो रहना तो पड़ेगा यहाँ पे, कोई ऑप्शन नहीं। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट आध्या मैम को स्पॉन्सर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे थोड़ा शिमला में एज ए डेवलपर लॉन्च करने के लिए भी उनका धन्यवाद है। उन्होंने अपनी ज़मीन दी जिस पर हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, एंड बहुत ऑनेस्ट रहने के लिए भी धन्यवाद। सो ये इतने ऑनेस्ट हैं कि मेरी वाइफ एक फ्लैट खरीदना चाहती थी शिमला में, अजीत सर ने मना कर दिया उन्होंने कि भाई नहीं। तो फिर मैंने बोला कि भाई क्यों मना कर रहे हो? बोले यार रहना तुमको है नहीं। मैंने बोला भाई वही पैसा वो डाल देगी गुड़गांव में, रेंट भी नहीं आएगा, कम से कम यहाँ 4 दिन रह जाएगा तो कुछ पैसा निकल जाएगा। So the showstopper would be Ajit sir when he comes, तो I guess he's on his way. बट मैं चाहता हूँ कि आध्या मैम कुछ बोले जर्नी के बारे में। And the lovely audience here. In fact, all the speakers before me, I've enjoyed every bit with all the learned personalities that are here present. So just to tell you a little about our journey. So as Pratik mentioned, I started my journey with Standard Chartered Bank, and I started as a wealth manager. For the first 5 years, I was with wealth management. So Ajit and I met in 2010. He was a banker. He started off as a clerk from OBC, and then a PO with SBI, and then he moved on to, so his last assignment as a banker was with ING Vysya Bank. So we met in 2010 and he left his job in 2011. So I was still working with Hindustan Times at that time, and so he was like, I'd like to explore. So for many years, figuring out what to explore. And in 2014, with the little capital that we had, started investing in, so he's the one who started this currently. So I'll leave the main story with him because it's his story. But just to cut the long story short, so we started with pre-launch in smaller cities like Patna, where we knew the developer, and the developer was also a railway clerk turned developer. Right now, he's among the top 5 developers in Patna. We started our journey from there, spent a lot of time there. We took this land that you see, this project, in 2019 in Shimla. And at that point of time, this land just had a walking trail. There was no road accessing the land, and that's the reason this land was available in the first place. So of course, we got a slightly good deal at that time. And since we were novices, this was our first project. Probably today, if somebody showed us this land, we would never invest in this land because the hurdles, the regulatory, the regulatory framework is very tough. The compliances are very high. So you got the road passed, you got into the MC, got a road cleared, got ambulance road, then got a proper road, then got a there's a small section that is owned by forest. So we got a FRA from forest because the road is owned by PWD, forest and MC. So we've seen everything that one can see. Even though our journey has been so right now, we own the maximum land parcel in the within the MC, within the municipality of Shimla.
and we have seen everything possible in the last 7 years there. But the journey has been really rewarding. The project that you see here, at the rate at which, so since I come from wealth management and Ajit has also been from banking, so we are largely as investors. So even in real estate, our game is investing still. So right now we are focusing on value creation for our clients, whoever is coming on board. So whatever value that we were selling a 2 BHK in 2 years back, sorry 3 BHK, we are selling a 2 BHK at that price. So we've given an appreciation of more than 50% in less than 2 years time in Shimla. And just to tell you a little about this location, this is the most posh location of Shimla. All the judiciary, all the judges, current and past, all the IAS officers, with the retired IAS officers, doctors, senior army officers, everybody resides in New Shimla. This is the only planned locality of Shimla, which is divided in sectors. So there is no other land that is available. So it is more why it will be the most coveted project, not now, for years to come, because there is no more land available. So if anybody aspires to make, there is no land to make a project like this. We have 7 acres in total, and this is going to be the Aralia and Magnolia of Shimla. And we are, so I just like to touch upon the clientele that we've managed to curate there. We have IRS officers, we have chief scientists, we have the MD of Barclays, who's based out of Noida only. We have CEO of PayU. We have Big Boss, the production guy. I mean, Endwall is the company, so the person heading it. We have people from Deloitte, from EY. We have Navy captains. So this is the kind of clientele that we've managed to curate, and we're very proud of that, because since this is the initial clientele that has come on board, the references are also from that community only. So I can proudly say that this is going to be the most, so in terms of the neighborhood, this is going to be the most posh neighborhood of Shimla, not now, in times to come. So we have the first phase there where we are giving possession this year, and the possession is 2 years early. As per RERA, we were supposed to give possession in May 28, but we are giving possession in July for 3 out of 5 towers. 2 towers we will give possession sometime in 28, and then our second phase is also getting launched. So on Pratik's request, we have worked on a special rate for mariners. We are giving it on pre-launch. So right now we are selling on an average of 9,000 to 9,500. But the second phase that is going to come, which will be a slightly higher end to the present one, we have only for mariners there's an exclusive rate of 8,000 per square feet for pre-launch. But of course, it will be available in 5 years time. But that pre-launch we are opening in this forum only for the second phase. And as we speak, Ajit is also here. So why don't you get up, since Pratik has been speaking about you. The story of how we came till here, I will leave it to Ajit, because that's his story to tell. So, मेरे साथ में क्या होता है कि मैं थोड़ा पॉडकास्ट भी करता हूँ. तो जब when I find the journey very exciting, तो I try to record it. कई बार क्या होता है कि वो मैं अपने उसके लिए कर रहा हूँ, कि अपनी बेटी को दिखा पाऊँ कि मैं उसको चाहता हूँ कि वो कैसा बने. कई बार ना वो कहीं बाइबल बनी नहीं है कि जैसा मैं चाहता हूँ मेरी बेटी बने. तो वो बाइबल क्या है कि कुछ चीज़ें चाहता हूँ कि विनय सर जैसी सीख जाए, कुछ चाहता हूँ कि कुछ गुण अजीत सर से ले ले, कुछ गुण आशुतोष सर से ले ले, थोड़े बहुत मुझसे भी ले ले जब वो बड़ी. तो मैंने ना रिकॉर्ड करने के लिए पॉडकास्ट की रिपोजिटरी चालू की थी, जहाँ पे आई वाज इंटरव्यूइंग पीपल आई एडमायर लॉट. तो अजीत से बहुत दिन से बोल रहा हूँ कि भाई तैयार ही नहीं हो रहा बंदा. ये एकमात्र ऐसे बिल्डर हैं जिसको मार्केटिंग नहीं करनी है, और इनका तब भी they have become the biggest
रियल एस्टेट डेवलपर ऑफ शिमला। सो पहली बार मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई स्टेज पहली बार ले रहे होंगे जी जी जहाँ अपनी जर्नी बताएंगे। आज इसके पहले तक तो बोले यार मैं स्टेज पे नहीं आऊंगा, ये नहीं आऊंगा, वो नहीं आऊंगा। बोले अगर मेरे साथ काम करना है तो किसी न किसी को तो ज्ञान देना पड़ेगा आपको, हम जबरदस्ती लेके आएंगे। सो आई गेस वन ऑफ द मोस्ट हम्बल मैन आई हैव मेट इन लास्ट आई गेस ऑलमोस्ट 10 years। उसके पहले भी एक हम्बल आदमी से मिला था। सो आई वेलकम अजीत टू शेयर हिज जर्नी of creating wealth from a capital of 2,500 रुपए महीने की सैलरी। बिगेस्ट डेवलपर ऑफ शिमला। एक्चुअली उनका नेट वर्थ पता है मुझे। ये गैदरिंग है, मैं क्यों नहीं आता हूँ, जैसा ये प्रतीक बोल रहे हैं कि मैंने पहले 15 साल जॉब की, फिर 15 साल हम एंटरप्रेन्योर बन गए। एंटरप्रेन्योरशिप का अगर आपके पास पेरेंटल प्रॉपर्टी नहीं है तो पहला जो फेस होता है 4-5 साल का, वो बेरोजगारी होता है। तो 15 साल के में 5 साल तो वो निकल गए, 10 साल से हम रियल्टर हैं। 15 साल में हमने जो कुछ भी किया है वो कोई भी तेज आदमी, स्मार्ट आदमी 3 साल में कर सकता है। अब यहाँ एक गैदरिंग या पब्लिक गैदरिंग में आओ और प्रिटेंड करो कि आप रिच हैं, स्मार्ट हैं और सक्सेसफुल हैं, जो तीनों हम नहीं हैं। तो इसलिए अभी हमारी फाउंडेशन ही बन रही है। दैट इज द रीजन कि कैसे आके ये सब बोला जाए। जिसे इन्होंने बोला कि बिगेस्ट डेवलपर ऑफ शिमला, बिकॉज बेसिकली शिमला गांव है। तो गांव का बिगेस्ट डेवलपर या डीलर बनने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा क्रेडिट जो हमको जाता है वो ये कि हमने शिमला चूज ही इसलिए किया क्योंकि वहां पे हमको लगा कि छोटी जगह है, कंपटीशन कम है, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो इसलिए वी चूज शिमला। उसमें हाँ रीजनेबल अमाउंट ऑफ सक्सेस हम लोग बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इफ नॉट दी ओनली मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड, वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड तो हम लोग हैं ही वहाँ पे जो 4-5 बिल्डर हैं। तो दैट इज। अब अगर मुझे क्या इस टॉपिक पे बोलना है कि वेल्थ कैसे, पैसे कैसे कमाने, कोई भी टॉपिक होगा, क्योंकि अगर इस टॉपिक में बोलना है रियल एस्टेट में पैसे कैसे कमाने हैं तो आई एम द बेस्ट, क्योंकि हमने रियल एस्टेट में पैसे ही कमाए, रुपए तक नहीं पहुंच पाए अभी। रुपए कमाने के लिए तो प्रतीक से बात करनी पड़ेगी, ये बताएगा। तो मुझे पता नहीं कि हम लोगों ने कितना डिस्कस किया है, बट क्विकली अगर जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था कि रियल एस्टेट में वेल्थ क्रिएशन के लिए हम, क्योंकि आई वाज अ बैंकर अर्लियर, और बैंकिंग और रियल एस्टेट डायगोनली अपोजिट है। बैंकिंग जो है वो तो इंटायरली देखिए रेगुलेशन, ट्रस्ट, कंजर्वेटिव बिजनेस है, बिकॉज यू आर मैनेजिंग समबडी एल्सेस मनी। आरिफपुरी का एक कोट है कि देयर इज नो सच थिंग एज काउबॉय बैंकिंग, विच इज वेरी एप्ट कोट। बट ऑन द अदर हैंड रियल एस्टेट जो है वो इंटायरली काउबॉइंग थिंग है। आपने आज 10 प्रोजेक्ट लॉन्च करने हैं, विद इन ईयर्स जो है बहुत सारा थोड़ा सेंसी आपको रखना पड़ता है, फ्लैम्बॉयंट रखना पड़ता है, उसको बैलेंस करना भी हमारे लिए एक चैलेंज है। बट प्रोबब्ली वी हैव फाउंड अ मिडिल पाथ जो हम लोग कर रहे हैं। बैंकिंग के स्टैंडर्ड से हम लोग रियल एस्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी अपनी जर्नी रियल एस्टेट एज ए इन्वेस्टमेंट क्लास, और उसको हमारी जर्नी से कैसे वो कहाँ एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, दैट इज वेयर आई विल टेक योर 5 minutes। कि देखिए रियल एस्टेट में अगर इन्वेस्ट करना है तो पैसे तो रियल एस्टेट में तो पैसे कहीं गेम में चाहिए। जो एक प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल होता है, प्रोजेक्ट का, हम कंपनी लेवल की बात नहीं करते। लैंड एक्विजिशन जो अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, पैसे भी लगते हैं। लैंड एक्वायर हो गई तो वहाँ से अप्रूवल, ज़्यादा पैसे नहीं लगते, अलग अलग जगह अलग अलग अमाउंट है। बॉम्बे में आप जाइए तो लॉन्च करने में भी लैंड के बाद भी अप्रूवल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। पटना शिमला वगैरह में जाइए, पटना में जाइए तो कम है। उसके बाद प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, लॉन्च से लेके फिनिशिंग तक आपको फंडिंग कंस्ट्रक्शन के लिए भी चाहिए। ये 3 स्टेजेस पे हर वक्त पैसे चाहिए। इन्वेस्टर कभी भी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन हर स्टेज पे ज्वाइन करने का रिस्क रिवार्ड आपका जो रेशियो है वो चेंज हो जाता है। एक चौथा भी है, जब आपका एसेट बन गया और आप बोल रहे हैं हम इसको लाइफ लॉन्ग होल्ड करना चाहता हूँ, दैट्स अ डिफरेंट एसेट क्लास।
रेजिडेंशियल आप नहीं करोगे, शायद कमर्शियल करोगे। तो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि उसको पता होना चाहिए कि वो व्हाट ही इज गेटिंग इनटू। देखिए रिस्क रिवार्ड तो ऑफ कोर्स आप लैंड एक्विजिशन का ही पार्ट बनोगे तो आपको पैसे ज्यादा बनेंगे। आप थोड़ी देर बाद क्या होता है कि प्राइमरी इन्वेस्टर को सेकेंडरी इन्वेस्टर एग्जिट दे रहा है, थोड़े कम पैसे बनेंगे, रिस्क स्टेज खत्म हो गई होगी। तो आपको लेकिन जो भी इन्वेस्टर जो भी इंटर कर रहा है, दो तीन चीजें जो कि रियल एस्टेट से ही लिंक नहीं है, फिर वो हर एसेट क्लास में कॉमन है। आपको पता होना चाहिए कि आप किस रिस्क रिवार्ड आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। रिस्क समझ में आ रही है कि नहीं, रिवार्ड पे बाद में आते हैं। रिस्क समझ में आ रही है कि नहीं, नंबर 2 फिर रिवार्ड आपका कमेंसुरेट है कि नहीं जो आप रिस्क ले रहे हो। तीसरा आपके एपेटाइट में है क्या, आपके एपेटाइट में भी होना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज तो कोई बोले कि भाई पैसे दे दो 1 साल में डबल कर दूंगा, बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड है, पर क्या आप वो करेंगे, आपके एपेटाइट में है, उसमें भी क्वेश्चन है। कुछ लोग बुलिश होंगे, उनके एपेटाइट में हो सकता है। उससे अगला स्टेज ये है कि एपेटाइट में तो है, पर क्या आपकी बैलेंस शीट उसको सपोर्ट करती है, आपके मीन्स उसको सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बिटकॉइन जैसा एसेट क्लास का एग्जाम्पल लूं, आई वुड नॉट जज एनी एसेट क्लास, बिकॉज मैं भी एक एसेट क्लास बेच रहा हूं, बिटकॉइन भी एक एसेट क्लास है। लेकिन अब बिटकॉइन मुझको नहीं जमता, मेरी रिस्क एपेटाइट के बाहर है। लेकिन मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है जो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहता है, एक यंग बच्चा जिसने अभी करियर शुरू किया है, 20-22 साल की उम्र है, 50,000 रुपए महीने उसके बच रहे हैं, बोल रहा हूं मैं बिटकॉइन में लगाऊंगा, सब लगा दूंगा। मुझे समझ में आता है क्योंकि पूरा उसकी जिंदगी पड़ी हुई है, वो रिस्क ले सकता है, यंग बच्चा है। 30 साल के बाद कोई 30 साल की नौकरी कर चुका है, 10, 20, 50, 100 करोड़ की नेटवर्थ है, बोलता है 2% में लगाऊंगा बिटकॉइन में, समझ में आता है मुझे। 5% भी लगाया, समझ में आता है, थोड़ा सा स्पेकुलेटिव एसेट है, समझ में आता है। अब आप बोलिए मैं 10 साल से नौकरी कर रहा हूँ, मेरे पास 2 करोड़ रुपए है, मैं बिटकॉइन में लगाने जा रहा हूँ सारे, समझ में नहीं आता है। ये पॉइंट मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप जो भी रिस्क ले रहे हो आपकी बैलेंस शीट से भी मैच करनी चाहिए, क्योंकि इन दैट तो दैट इज ये हर एसेट क्लास के लिए कॉमन है, इसके लिए भी कॉमन है, रियल एस्टेट के लिए भी कॉमन है। अब यहां से आजकल अच्छा रियल एस्टेट में देखिए, ये जो मैंने आपको फिजिकल एसेट या प्रोजेक्ट लेवल पे बताया अपॉर्चुनिटी जोड़ने के लिए, इसके बियॉन्ड भी आपके पास आजकल REIT है, आप DLF का शेयर खरीद रहे हैं, इन्वेस्टमेंट है, रियल एस्टेट में लगा रहे हैं आप AIF, रियल एस्टेट AIF बहुत ज्यादा है, जिसमें आप बेसिकली फंड कर रहे हैं थ्रू अ व्हीकल, अगला एसेट क्लास है। तीसरा ऑफ कोर्स REIT है, जिसमें आपका बिल्टअप एसेट आप लिस्ट कर रहे हैं। ये सारे और एवेन्यूज बहुत है, पर आपको समझ में आ रहे हैं, आपके रिस्क एपेटाइट में पड़ते हैं, आपकी बैलेंस शीट सपोर्ट करती है क्या, दीज थिंग्स जो हर एसेट क्लास के लिए कॉमन है वो आपने देख लिया। और हर रिस्क स्टेज को एसेस करने के लिए आपके मैट्रिक्स भी फर्क होंगे। जैसे हम अपनी जर्नी की बात करें तो हम लोगों ने, जब मैंने जॉब छोड़ी, हमारे पास 1-2 करोड़ रुपए का इंटायर कैपिटल था, वो भी इन्हीं लोगों का था। अगर मैं बोलूंगा नहीं तो ये लोग बाद में मेरे पीछे चढ़ जाएंगे कि हमारे पैसे से करा है, ये मयंक बैठा है, ये आते बैठे, इन्हीं का था। तो हमने जो रिस्क ली, हमने लैंड एक्विजिशन वाली ली, हमने ली पटना में, हम लैंड एक्विजिशन के पार्ट बने। पटना में JV होता है, यू नो, तो बेसिकली नॉन रिफंडेबल जो देना पड़ता है। हमने प्री लॉन्च पे इन्वेंट्री ली और हमने मैसिव डिस्काउंट पे ली। लेकिन जो मैं बोल रहा था समझने वाली बात, तो 2012 में जॉब छोड़ने तक 2014-15 तक हमने 1 रुपया भी डिप्लॉय नहीं किया। उस एसेट क्लास को समझने में हमको टाइम लग गया। फिर नाउ आप जहाँ पे पिच करने जा रहे हो, जहाँ पे पैसे लगाने जा रहे हो, वहाँ पे आपको मार्केट भी समझ में आनी चाहिए, वहाँ पे आपको डेवलपर भी समझ में आना चाहिए। और हमारे पास तो ऑफकोर्स कैपिटल भी बहुत स्मॉल ही थी। तो फाइनली 3-4 साल के रिसर्च के बाद हम उसमें गए। तो दैट इज वन थिंग, चलो हम 3-4 साल में गए, 23 लोग 6 महीने में जा सकते हैं, 1 साल में जा सकते हैं। बट पॉइंट इज आप अगर आप लैंड एक्विजिशन के पार्ट बन रहे हैं तो डेवलपर इज इम्पोर्टेंट, आपको देखना पड़ेगा। तो अजीत सर को फेलिसिटेट करने के लिए मैं चाहूँगा, कैप्टन साहब आ गए हैं हमारे, और हाँ सर, और अजीत सर को फेलिसिटेट करते हैं। मुझे नहीं लगता कि शिमला बेचने के लिए हमको दिल्ली की गर्मी पिच करने की जरूरत है।
Shimla itself is a very beautiful city to invest and even to live. अच्छा सचिन, अब अगला जो स्पीकर है हमारे मेरे आई गेस 10 साल से मेरे पार्टनर रह चुके हैं। तो अभी जो अवतार है मेरे ऑर्गेनाइजेशन का, उसके पहले मैं कंप्लीट लाता था nurture.com। तो वहाँ पे 4 पार्टनर हुआ करते थे। तो nurture.com आई गेस एट इट्स प्राइम वाज इंडियाज लार्जेस्ट चेस ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। उस पर नहीं जाते हैं। तो कोई मुझसे वो पूछता है कि तुमने nurture.com में क्या बड़ा काम किया है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैंने $1 मिलियनर बनाया है nurture.com में, क्योंकि एक हमारे पार्टनर को एग्जिट मिला था उसमें। तो वो पार्टनर हमारे हिमांशु ही है। एंड पोस्ट जब मैंने nurture.com से एग्जिट लिया, so we connected again and we are doing stuff together, क्योंकि मुझे लगा कि वो सिनर्जी ज़्यादा अच्छी है साथ में काम करने की। तो आई वुड लाइक टू कॉल हिमांशु। आपकी स्लाइड है ना कुछ? And I guess a round of applause. अच्छा, ये मैं बताता हूँ, ये अजीत सर के लिए था जो तालियां हमने बजाई है। हिमांशु का आशीर्वाद है। हाँ, तो अजीत सर का बोलना है कि नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग कर रहे हैं कॉन्क्लेव, तो हम लोग रजिस्ट्रेशन फीस EOI रखेंगे, तब थोड़ा फिल्टर्ड ऑडियंस आएगी। ये जोक था, वैसे आप लोग सीरियसली ले लें इसको। मेरे नाम पे लगा रहे। हाँ, अजीत सर का ही जोक है ये। नहीं, EOI चाहिए सर। आप कॉन्क्लेव में आने के लिए आप किसी न किसी में आपको पैसा डालना पड़ेगा स्टार्ट। तो माय नेम इज़ हिमांशु। प्रतीक के साथ काम करते हुए 7-8 साल हो गए। 2016-17 में मिले थे और बहुत एक अच्छी चीज़ ये लग रही है कि यहाँ पे हिंदी में बोल के बात करी जा सकती है। और मेरे को एक्चुअली फील होता है कि इंडिया में हम लोग पहले 1 मिनट इसमें लगाते हैं कि हम दोनों को इंग्लिश आती है और फिर जब ये एस्टैब्लिश हो जाता है तो फिर हम हिंदी पे आ जाते हैं। तो जब मैं अपनी कॉन्फ्रेंसेस में बोलता हूँ तो मैं 1 मिनट बोल लेता हूँ इंग्लिश में। तो जैसे ये ऑडिटोरियम है, ऐसे ही IIT में बड़े ऑडिटोरियम्स हैं। एक डोगरा हॉल है जिसकी 1200 कैपेसिटी है। अगर आपने पैडमैन देखी हो तो अक्षय कुमार को जब अवार्ड नहीं मिलता है अमिताभ बच्चन से, एंड ही वाज वेरी डिजेक्टेड, वो रिकॉर्डिंग डोगरा हॉल की है। और एक लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो वहाँ पे हम ऐसी भीड़ जुटाते हैं स्कूल ओनर्स, फाउंडर्स की, पिछले 16 साल से करते आ रहे हैं। आशुतोष वहाँ पे आए हैं, बहुत सारे एजुकेशन में काम करने वाले एंटरप्रेन्योर्स वहाँ आते हैं। तो मैंने प्रतीक को ऐसे कम से कम 10-12 जगह खड़ा किया होगा, उसने 2000 लोगों को एड्रेस किया होगा। आज जाके उसने आप जैसे 50-60 लोगों को एड्रेस करने के लिए मेरे को मौका दिया है। और isn't it the actual reality of Indian education system that you are the top 1%, 0.5% of the country, the cream de la cream। और जो हमारे टीचर्स हैं, you all know किसको बोला जाता है कि टीचर बन जाओ, जॉब आसान होगी, शादी के बाद बच्चे भी आसानी से पाल लोगे। तो ये कहना गलत नहीं है कि आप जैसे एक पे उन जैसे 200-300 आते होंगे, क्योंकि वैसे ही हमारा पिरामिड बना है। यू आर एट द टॉप ऑफ द पिरामिड, टॉप ऑफ द फूड चेन, दे आर एट द बॉटम। और उन्हीं में से कुछ स्कूल फाउंडर्स बन जाते हैं। वी आर वर्किंग विद देम फॉर लास्ट 15-16 ईयर्स।
प्रतीक भी पहले एजुकेटर ही थे, रियाल्टर बनने से पहले। मैं अभी भी एजुकेटर हूँ, वो भी रियलिटी की तरफ आ गए हैं। बट वी आर होपिंग दैट आवर एम्बिशन इन एजुकेशन स्टिल स्टेज। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू डिस्कस एजुकेशन विद यू, क्योंकि मेरे को लगता है कि दोज हु हैव द हैंगअप्स ऑफ बीइंग एन एजुकेटर वो थोड़े कम इंटरेस्टेड इन एजुकेशन में, और जो नॉन एजुकेटर्स हैं वो ज़्यादा सिंसियर और सीरियस सवाल पूछ सकते हैं। तो आई विल स्टार्ट विद दिस, क्योंकि मेरे को लगा आप लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ पहली बार, सो आई शुड हैव सम बैकग्राउंड ऑफ कॉमननेस। तो यू ऑल नो दिस राइट? तो एक क्वेश्चन है कि अगर आप यहाँ से अपना शिप लेके जा रहे हैं और आपका एक इंजन खराब हो जाए तो आप क्या करेंगे? एक दो आंसर्स अगर मिल जाए, इट विल क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो इन द एजुकेशन सेक्टर। अगर आप शिप लेके जा रहे हैं और क्या खराब हो जाए? वॉल्व, एक एग्जॉस्ट वॉल्व फट गया, तो व्हाट वुड बी योर फर्स्ट रिएक्शन? कितने सिगरेट और कितने विस्की देनी पड़ेगी? किसको? सुएज कैनाल को। अच्छा, मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि और कुछ तो नहीं होगा। चलिए ठीक है, कोई और आंसर? हाँ, इंजीनियर वाला। ये तो मैनेजर वाला। योगेश सर, मैं क्या बोलूँगा? यूनिट कट ऑफ करिए। हाँ बताइए। और वो जो यूनिट कट ऑफ कर दिया है उसको ठीक करने का कोई चांस है कि नहीं है? ठीक है, तो आप ये आंसर इसलिए दे रहे हैं बिकॉज यू नो हाउ द शिप रन्स। अगर उसका एक पार्ट फेल हो गया है तो दूसरे पार्ट से कैसे काम कराना है, बिकॉज द शिप मस्ट क्रॉस द सुएज कैनाल at any cost, and you have been able to identify an answer because you know the internal dynamics of how ship runs, right? अगर आप वो ना जानते हो तो एक तरीका है कि you bribe them, दूसरा तरीका है you blame the ship, you all get ashore और आप शिप को ब्लेम करो कि इसी में ही सारी गलती। So when you don't know the answer, the only way of surviving is to blame the part which is not working. जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में लर्निंग में होता है, सबसे आसान टारगेट है जो आपको कभी आंसर नहीं देगा, is the child. So if the child is not learning, you blame the child because you don't know how learning happens, you don't know how to work around this thing. तो यही एक चीज है जो मैं अभी बताना चाह रहा हूं। तो सुएज कैनाल हो गया, मतलब वी हैव एन एस्पिरेशन कि हम स्कूल खोलें। प्रतीक ने बोला यहाँ पे भी पैसे मांग लेते हैं, तो अपने आप तो क्या होता है कि यहाँ से शुरू होता है कोई भी चीज। स्क्रीन कर दो, ये सैम आर्टमैन जो है यहाँ का। सो प्रतीक का 10 मिनट ऑफ ग्लोरी ये होगी कि जब सचिन सैम आल्टमैन बन जाएगा तो बोलेगा ये मेरी स्लाइड चेंज करता था। हाँ, तो ये एक अच्छा तरीका है बोलने का कि स्कूल में इन्वेस्ट करते हैं, लेट्स बिकम अ स्कूल ओनर, इट्स अ स्टेबल एंड इट गिव्स लुक्रेटिव रिटर्न्स। बट आई थॉट लेट्स गो बियॉन्ड दिस एंड लेट्स आस्क द व्हाई बिहाइंड एवरीथिंग। मेरे एक इन्वेस्टर है, उनके पास बहुत सारा पैसा है। उन्होंने बोला कि फॉर द मनी विच आई हैव 30 डिफरेंट ऑप्शंस टू इन्वेस्ट इनटू इट, वेयर आई शुड इन्वेस्ट। बट द क्वेश्चन इज व्हाई शुड आई इन्वेस्ट इट देयर? एंड so I would spend 8 minutes on why and then another 5 minutes on the financials of it, and then I hope if you have questions we can take it outside. So most of you have been into sailing, and I know very less about sailing. I have been exposure to sailors like Prateek, my previous co-founder Ashutosh. मैंने बहुत सुना है सेलिंग के बारे में कि आप शिप पे होते हो, बस आप ही होते हो, तो सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको ही करना है। एंड व्हेन यू आर हियर, आपका टीम 1000 मेट्रिक टन का शिप
and there are days when things become very tough. For me, those tough days are when I am abroad visiting schools. I feel very lonely. I become homesick on day 0. मैं फ्लाइट में बैठता हूँ और मैं डेज गिनना शुरू करता हूँ. I have been to schools across the world. I have spent most of my time in the schools in Finland, followed by US, UK, Australia. And at that time, I asked myself why. कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं? And I think ship is a more torturous place. I think it's a more demanding place. And then you ask yourself why. And I think this is one of the photographs which you might recall. I have a family, I have parents, I have kids, and this is why I'm here. I might get down after 8 months, I'll get to meet them, and I have earned money for them. And then there are two parts of it. We are mostly sandwiched between elderlies, and I want to create some health safety for them. And then I have kids who are growing up, जिनका करियर हमारे हाथ में है, सेफ्टी भी है of course, but the burden of creating a good career for them is actually more heavy, because we don't want them to feel something after 10-15 years कि we are stuck somewhere. We want them to have options. So we find a good school and we go back and sail. This is the only thing which we can do, कि हम एक अच्छा स्कूल ढूंढें और उनको उसमें भेज दें. और फिर हम सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन होती है अच्छे स्कूल की. So let us have one more round of Q&A. What is your definition of a good school? Then I'll give you mine. कोई भी बता दे. आप लोग ने, how many of you have kids in primary school? Primary school is class 1st to 5th. Then middle school is class 6th to 8th. Middle school. And then second senior is 9 to 12th. बाकी लोग कॉलेज में चले गए. So what is your definition of a good school? Creativity. हाँ जी. Creativity. Okay. आशुतोष आप ही बता दो. To help my child to become a good human being. Okay. कोई और? कोई जल्दी जल्दी बता दो आप. Discipline. Discipline. Okay. Create inquisitiveness. बच्चे को सीख किया जाए. हाँ. वर्ड से बच्चे को उसके हाँ. वर्ड को. पर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोग तो 8 महीने शिप पे हो, मतलब जब भी थे, ये सब जो आपने बोला इसको असेस करने का टाइम कब मिला आपको? जब आपने डिसाइड करा कि मेरा बच्चा स्कूल में जाएगा, तब क्या आपने ये सब देखा था? क्या आपको इसके आंसर्स मिले थे? इसके बेसिस पे आपने किसी स्कूल को रिजेक्ट करा, किसी स्कूल को सिलेक्ट करा? नहीं करा. मेरे ख्याल से गुड स्कूल की डेफिनेशन ये है, बिकॉज दिस इज व्हाट इज विजिबल. इट शुड हैव डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर. और सेकेंड चीज है फीस विच इज स्लाइटली अबव माई कंफर्ट लेवल, क्योंकि ओनली देन आई फील सेटिस्फैक्शन कि जितना कर सकता था उससे थोड़ा सा ज्यादा कर दिया है. अंदर कितनी इंक्विजिटिवनेस हो रही है, कितनी क्रिएटिविटी हो रही है, ये सब तो कुछ नहीं पता, पर 10 रुपए कमा रहा था तो 3 की जगह 3.5 लगाकर वापस शिप पे गया हूं. इसीलिए मैं उस स्कूल को अच्छा मानता हूं. कुछ स्कूल 5.5 रुपए भी चार्ज कर रहे हैं, कुछ 2 रुपए भी चार्ज कर रहे हैं. मेरी हैसियत 3 की थी, मैंने 3.5 दिए हैं. इतना ही आप देख पा रहे हैं आज की डेट में. बिल्डिंग, फीस, and of course it has a perception that school which is charging better would be delivering more, right? और फिर हम में से क्यों कई लोगों को लगता है कि अभी भी वो बात नहीं आ रही, हमारे बच्चे जो है उस तरीके से नहीं बन रहे. जब मैं वापस 1 महीने बाद फोन करता हूँ, अपने बच्चों की प्रोग्रेस जानना चाहता हूँ, अपने पीटीएम्स में जाना चाहता हूँ, तो मेरे को तो नहीं लगता कि क्रिएटिव हो गए, इंक्विजिटिवनेस आ गई, लीडरशिप क्वालिटीज आ गई, होलिस्टिक लर्निंग हो गई. क्या आप में से कभी किसी को लगा है? प्रतीक को लगा है, किसी और को लगा है कि मतलब सब कुछ देख के स्कूल चूज करा पर फिर भी वो बात क्यों नहीं आ रही? क्या किसी को ऐसा फील हुआ है या नहीं हुआ है? मतलब द डेटा पॉइंट फॉर मी. क्योंकि
मेरे को तो होता है. I think the achieving rate is more, so we get more responsibility. But we need to reach our goal. Sir, elaborate, please. Yes. How many of us feel that our response is far from? No, I am saying responsibility in terms of that have we handed over our students to the right person. Now we can be assured कि अब सब ठीक चलेगा. क्या आपको ये फीलिंग आती है कि आफ्टर चूजिंग दैट स्कूल अब हमने अपना काम मोर और लेस निभा दिया है, कि अब कहीं कोई कमी नहीं दिख रही है? क्योंकि मोस्टली क्या होता है, ये मेरे को रीफ्रेज करना चाहिए था ये स्लाइड. मोस्टली क्या होता है, फिर वापस बात आती है वहीं पे जो मैं कह रहा था, दैट समथिंग हैज बीन टोल्ड अबाउट चाइल्ड, कि वो तो ये नहीं करता, वो नहीं करता, और फिर हम उसके लिए बाद में एक और ट्यूशन लगाते हैं, फिर उसके लिए बाद में कुछ और लगाते हैं, और वो चीज कभी खत्म ही नहीं होती. सो दिस इज व्हाट आई मेंट बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी. व्हाट इज दैट मिसिंग कंपोनेंट? क्या आपने कभी, जैसे जो अभी सब हमने बातें करी, बच्चा होलिस्टिक हो जाए, क्रिएटिव हो जाए, लीडरशिप क्वालिटी हो जाए, वो नहीं हो रहा है. हमें पता लग रहा है कि नहीं हो रहा है. हमें पता लगता है जब शिप स्लो चल रहा होता है, तो हमें पता लगता है. जब हम हमारे बच्चे से बात करते हैं, उसके लर्निंग आउटकम हमें पता लगते हैं. हम सब टॉप 1% में से हैं इंडिया के, हम सब अच्छे कॉलेज गए, हमें पता है कि कब क्या मिसिंग, वो क्यों होता है और वो क्या है, इस पे एक बात करते हैं. हम में से कोई भी अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेज रहा है, वो सारे प्राइवेट स्कूल ही हैं. प्राइवेट स्कूल एग्जिस्टेंस में क्यों आए? क्योंकि ये एक गवर्नमेंट स्कूल था. इससे भी और भी खराब बिल्डिंग्स होती है. बिल्डिंग इज द ओनली इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी दैट वी हैव. एक बिल्डिंग थी, एक क्लासरूम था. उस क्लासरूम को देखकर, जैसे अभी सर बता रहे थे अजीत सर, कि मैंने एक प्लंज लिया, मेरे पास कुछ पैसे थे, मैंने एक जगह जमीन खरीद ली. किसी एक ने एक बेटर बिल्डिंग बनाई और कुछ टीचर्स रखे. बाय लुकिंग एट द बिल्डिंग यू हैड एन आइडिया कि यहां पे कुछ तो बेटर होगा, सो यू डिसाइडेड. और दिस इज द जर्नी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. वो ऐसे स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद बेटर बिल्डिंग, देन बेटर बिल्डिंग, देन बेटर बिल्डिंग. So buildings have actually gone off the charts. You can actually compare a school and a 5-star hotel, and I can show you 10 schools in Delhi NCR which are better than 5-star hotels. Lobby है, marbles है, swimming pool है, घोड़े हैं, और AC buses भी हैं. These are the indicators of perceived education which happens, but still it is not there, right? तो ये हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर की जर्नी. Then there is a team which runs the ship, which knows how the engine works, what to do if the engine fails. That is the teacher, that is the crew which runs that ship. ये हम जैसे लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं. हम लोग अभी मैं आई वुड बी मॉडरेटिंग द नेक्स्ट सेशन एंड आई वाज रीडिंग ऑल द बायोस. सब में एक चीज कॉमन है, सब मरीनर्स थे, फिर कोई IAS बन गया, किसी ने कंपनी चला दी, कोई UK पढ़ने चला गया, कोई कच चला गया. सो दिस इज आवर द प्रोफेशनल्स विच आर मेकिंग इंडिया प्राउड. ये इनकी जर्नी रही है. स्कूल, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एवरी टाइम देयर वाज अ थ्रस्ट व्हिच टुक देम टू द नेक्स्ट ऑर्बिट, टू द नेक्स्ट ऑर्बिट, एंड यू आर सिटिंग हियर फ्रॉम द हाईएस्ट ऑर्बिट पॉसिबल. वेयर आर आवर टीचर्स? आपको हमारा टीचर कब दिखता है कि कहीं बहुत बड़ी जगह हो? कब दिखा कि हमें पता है कि गूगल को इंडियन चलाता है और कितने सारे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एंड ऑल दैट. हाँ, कब हमने सुना कि वर्ल्ड के सबसे अच्छे स्कूल का प्रिंसिपल हमारा टीचर है? कभी सुना आपने? पहले सुनते थे. ये अच्छी बात है क्योंकि वो ऐसे नीचे जा रहा है. बिल्कुल ग्राफ पहले सुना होगा. कब आपने एम्स, IITs के इक्विवेलेंट कोई और टीचर ट्रेनिंग कॉलेज सुना कि यहाँ जाओ तो लाइफ बन जाएगी? फिजिक्स वाला इन लोगों ने चेंज कर दिया. फिजिक्स वाला और क्या खान साहब,
नहीं, वो तो सेल्फ लर्न टीचर है। और वो टीचर्स हायर सेकेंडरी स्कूल के 11th 12th मोस्टली। तो ये उनका सिस्टम है, उनका सैटेलाइट कभी लॉन्च ही नहीं हो पाता है हमारे टीचर्स का, क्योंकि उनके लिए बनाया ही वो ब्रोकन स्पेस गया है जहां पे बोलते हैं कुछ नहीं बने तो टीचर बनो। सो दिस इज द कर्मा, द इंडियन कर्मा व्हिच आई से। आप लोग एक स्कूल में थे, आप लोग के स्कूल में आप लोग यहाँ पहुंच गए, बहुत बड़े बन गए, बहुत पैसे आ गए। जो पीछे थे, जो एक्चुअली पीछे नहीं थे, उनके टीचर्स ने डिसाइड करा कि वो पीछे हैं, क्योंकि टीचर्स भी सर्वाइवल मोड में थे, वो भी टीचर बन गए जाके। अब वो टीचर आपके बच्चों को पढ़ा रहा है और वो आपको बता रहा है कि आपका बच्चा कुछ नहीं कर सकता। तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का कर्मा है जो वापस लौट के आता है। तो एज अ टॉप 1%, the whole community which you have who will work for your student, for your child, belongs to that bottom of the barrel, who comes without any preparation, without any support in graduation or post graduation. So Harish sir is back. Harish sir is my mentor. हमने together we have spent years with schools. So teacher preparation program is non-existent. So pre-service is non-existent. And what you do in the school for upskilling the teachers, your finances don't support that. वो जो एक एंटरप्रेन्योर है जिसने 2 एकड़ जमीन पे एक छोटा सा स्कूल बना दिया, वो उस टीचर को ट्रेन करने के लायक ही नहीं है, उसके पास इतने पैसे ही नहीं है, और जो रूल्स हैं वो अलाउ भी नहीं करते उसको, उसके पास इतना पेशेंस नहीं, उसके पास इतनी नॉलेज भी नहीं है। सो एट द एंड which you have is a good building without any soul in it. तो जो भी आपको फील होता है कि ये काम क्यों नहीं कर रहा सब कुछ, वो इसलिए क्योंकि सारा पैसा जो है वो मार्बल्स पे लग गया और जो इंटरनल जो टीम थी उस पे नहीं लग पाया। नाउ स्कूल एज अ बिजनेस, 500 स्टूडेंट्स पे ब्रेक इवन आ जाता है। अगर वो स्कूल आपका नहीं है, इट इज एन एसेट लाइट स्कूल, तो वो ब्रेक इवन 700 स्टूडेंट्स पे आ जाएगा। एबिटा विद लो क्वालिटी इज 40 to 50%, with high quality is 25 to 30%. So low quality school is where school owner do not want to deploy any funds at all in teacher development. So in India, if you will see that there are high paying teachers and there are low paying teachers. The only difference between a high paying and low paying teacher is the kind of English which they speak, the accent in which they speak. जो आपको अंग्रेजी में जवाब देकर आपको चुप करा सकता है उसकी सैलरी ज्यादा है, उसको थोड़े दिनों बाद प्रिंसिपल भी बना देंगे जो आपको धमका के रखेगा। इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल पेडागोजी कोई फर्क नहीं है, सब एक जैसे हैं। तो ये स्कूल एज अ बिजनेस है। यहाँ पे इंडिया में अब अपॉर्चुनिटी है, लोअर मिडिल क्लास अब अपर मिडिल क्लास की तरफ जा रहा है। 5,000 से 6,000 7,000 पर मंथ देने वाला ब्रैकेट, फैमिली इनकम मतलब जो मंथली फीस अफोर्ड कर सकते हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और थोड़े से रूल्स भी अभी ईज आउट हुए हैं। गवर्नमेंट ने हायर एजुकेशन में FDI अलाउ करी है, स्कूल एजुकेशन में ये सारे प्लेबुक बन चुकी है, हाउ टू प्ले इट एज अ गुड डिसेंट बिजनेस। इंडिया में जब कोविड आया, एक तो हमारी कंपनी थी जो मर गई, और ऐसे बहुत सारे एडटेक्स थे जो जैसे जब बायजूस गया तो सारे एडटेक्स चले गए उसके साथ। आप में से कुछ लोगों को शायद ये पता होगा, 2-3 हजार थे, सब गायब हो गए। कुछ कंपनी थी जो तब भी ठीक करती रही, जो एडटेक में नहीं थी, सिर्फ एजुकेशन में थी। वो सिर्फ स्कूल चला रहे थे, स्कूल बढ़ा रहे थे, स्कूल चला रहे थे, और वो आज की डेट में यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं। 50 स्कूल के ऊपर आप यूनिकॉर्न बन जाओगे। तो यही हमारा भी एक प्लान है।
हमारे पास एक अच्छी टीम है, उस टीम के अंदर ऐसे 2 लोग हैं जिन्होंने ऐसे 2 यूनिकॉर्न्स बना दिए हैं उसी समय उसी तरीके के बिजनेसेस में। हरीश सर से आप मिल चुके हैं, राजा राम सर फॉरवर्ड जॉइंट डायरेक्टर हैं एनसीईआरटी के, हमारे एकेडमिक सारा वही संभालते हैं। गैरी कस्टम आपको शायद पता हो, इंडियन कोच रहे हैं। आकाश चौधरी, आकाश एजुकेशन $1 बिलियन एग्जिट। विकास फडनेस स्कूल चेन $1 बिलियन एग्जिट। ये जो मैं बता रहा हूँ 1.2 बिलियन, उसके को फाउंडर रहे हैं। सो वी हैव ऑल दी मैथ्यू रैगेट, फॉर्मर प्रिंसिपल दून स्कूल देहरादून। हरीश सर जिस स्कूल से पढ़े हैं उसी स्कूल के वो हेड मास्टर रहे थे अभी लेटली 4 साल पहले तक, एंड फ्यू मोर पीपल। सो दिस इज आवर विजन। ऑफकोर्स हर कोई यूनिकॉर्न बोलता है तो आसान है, हमने भी बोल दिया। सो वी हैव अ सेट ट्रेजेक्टरी, 50 schools in 8 years, $1 billion valuation, around 25x return to our early investors. This is our plan. You will have many investment opportunities. Today we are discussing many such things. हमारे पास real estate भी है, हमारे पास shipping के around भी कुछ चीज़ें आएंगी, मैंने सोचा मैं भी यहाँ बता दूँ। But the intent was to also educate you about what happens in the school, क्योंकि अगर आपको वो पता है तो in your small way you would go back and start asking the right questions. So thank you so much for your patience. Thank you, Pratik. Yes, thank you हिमांशु सर। क्वेश्चंस है एक, यस सर, अरे एक सर। Schools. So, can you describe the kind of schools you want to build, apart from infrastructure? Syllabus-wise, is it NCERT syllabus, or you have your own? So we have identified the audience for which we want to build. The families which are moving from lower middle class to middle class, who can afford a fee bracket of 5,000 to 8,000 rupees a month. So the annual fees would be around 80,000 to 1.2 lakhs. That would be the fees. Another 5,000 to 6,000 in after school activities which we will do. So this is the target audience which we are building, and of course the board would be CBSE or ICSE. So we'll follow those boards. The teachers? We have developed our own international certification for teachers. We are doing that for our schools. हमने पिछले 4 साल इंडिया, फिनलैंड, आपको पता होगा फिनलैंड वर्ल्ड का सबसे अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि वहाँ के टीचर्स उतने ही मुश्किल से बनते हैं जितने यहाँ के IITians। सारा गेम वही है। वहाँ पे अगर आप अच्छे लोगों को टीचर्स बना देंगे तो वो अच्छे स्टूडेंट्स बनाएंगे। So we have studied all the curriculums. We have created our own teacher training curriculum. We have got international certifications on top of it. So we would having our own teachers. We have the formula of creating good subject teachers in 6 months to 8 months. So we would train our teachers, because this is where most of the schools are faltering. इंफ्रास्ट्रक्चर की एक प्ले बुक है, ज़मीन कैसे बनाई जाती है, CBSE से अप्रूवल कैसे लिए जाते हैं, बिल्डिंग कैसे खड़ी करी जाती है, ट्रांसपोर्टेशन के। एक अच्छा टीचर बनाने में ही हम पीछे रह गए। So our most of the research was in that, and Professor Harish Chaudhary, Professor Raja Ram, many of our faculty members from abroad have contributed to this research. So now the whole playbook is ready. Our focus would be on teachers who would then create good schools. You already have some schools, or you're going to start? No, we don't have any school right now. We give consultancy to lot of schools. Now we are planning to have our first school. We have some good offers, but we need capital. Which area you are planning to develop? Geographically? Which geographically, yes.
सबसे पहले एनसीआर, हम यहीं पे ही हैं, हिंदी बेल्ट में ही रहेंगे। How much investment is required? जनरली एक स्कूल को, एक अच्छा स्कूल, अब वो दिन नहीं रहे जब आप 5 एकड़ ज़मीन खरीदें फिर उसके अंदर 1 लाख स्क्वायर फीट डेवलप करें। अब स्कूल का बिजनेस इसीलिए आसान हो गया है दैट यू कैन गो इनटू एसेट लाइट। यू कैन टेक अ स्कूल ऑन लीज, 10 लाख रुपीज अ मंथ रेंट। So you need around 5 to 8 CR to start a school. It takes 3 years to get them to break even point, after which it starts giving you a beta of 25 to 30%. And then you can raise more funds, get more schools. So you need around 8 to 10 CR per school. But the way the things are moving, maybe the concept of school itself goes away in few years. Okay, I don't think so. इंडिया में ऐसा नहीं होगा, बहुत टाइम तक नहीं होगा, क्योंकि आप शायद AI की बात कर रहे हैं, right? When you say things are moving, AI in the hand of a incompetent teacher will make a further incompetent child, because it will give all the answers for rote learning. Critical thinking starts when you challenge the inputs given by AI. And if a teacher can't do that, the students will get a safe option to get all the answers. तो जितना बच्चा अभी सोच रहा है उससे भी कम हो जाएगा. So it will make a cognitively lethargic child when AI will be in the hands of an incompetent teacher. Sir, don't you think it is, going quite against the grain, because the gap of children learning AI and other things is growing faster than we are being able to develop the teachers. So, how are you doing this balancing act? You say that you will develop the teachers, but then who will teach the teachers? And so this whole thing will shrink like there needs a headroom for the teachers to come to that level, that so many schools तो बनेंगे and बन रहे हैं आजकल, plenty of schools, and we know there is a glut of teachers. There's also the glut in the quality of teachers. There's a glut in the desire to become a teacher. Do you have that analysis that building your own teachers, you will be able to close this gap? We believe so, because we only need, when you start a school, so CBSE has this rule that for one section you need 1.5 teachers. So if we start with 8 classrooms, we need 12 good teachers. We have access to thousands of schools across the country. I'll explain you that later. That's the what we have earned in last 15 years. We have access to thousands of B.Ed colleges. We only need top 30 teachers who can work with us for our first school. I think that is manageable, and we are creating good teachers for other schools as well. Your own schools you can scale, that's scalable. Of course, when you go to the other schools, whether the things will change. So right now I'm talking about my own schools. Yeah. One school, so first school for first 2 years, then next 3 schools, then next 3 schools. We have a journey for how our next 50 schools will pan out in next 8 to 10 years. And we will create a supply chain of teachers for that. Then your model can probably be reached to PM Modi, and so that all the other schools which are under complaints. So I have no comments on how government will benefit from it. In last 15 years, we have never been able to see anything moving on that front. Exactly. That's why we work with private school owners, because their money is at stake, they can take a decision. माशा आपने बात की थी फिनलैंड की, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है। वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि डेनमार्क, फिनलैंड, ये सब जगह पे जो सोसाइटी है, टीचिंग इज़ द हाईएस्ट पेइंग जॉब। और इसीलिए आपने कंपेयर किया था कि जैसे IIT के जो टीचर्स हैं वो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो उन्हें पढ़ा रहे हैं। तो इट इज़ वेरी हार्टिंग टू सी दैट यू हैव एड्रेस द राइट चैलेंज। बट ये इस पूरे इकोसिस्टम में जो मुझे ब्लॉक लगता था, बड़ा हार्डल लगता था, वो ये कि जब आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं है तो आपका वो रॉ मटेरियल जो आप इन्फ्लक्स करेंगे टीचर्स की, वो
वो unless and until somebody is really passionate to do it on his own, do you think this will be a real challenge? हाँ, जब आप कहते हैं अब आपके पास जब वो रिसोर्सेज नहीं है, are you talking about the quality of teachers? Yes. Yes, and how much they are getting paid. हाँ, पहले मैं पेमेंट वाला इशू बता देता हूँ. फिनलैंड में टीचर्स आर नॉट द हाईएस्ट पेड. हरीश सर और मैंने फिनलैंड में महीनों बिताए हैं वहाँ के स्कूल टीचर्स के साथ. बट दे आर वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड प्रोफेशंस. I think all these questions are very important, but as Himanshu rightly said, the teachers in Finland are not highly paid, categorical. But they're a very equitable society. Typically, a Finnish teacher will be getting about 200 euros. And the highest paid profession is a heart surgeon who gets about 8,500. We're in IIT. Across the road, in the institutional area, there are 3 institutions who pay salary to professors significantly higher than IIT. Now we have a severe HR problem in IIT. Nobody leaves. तो हमारे डायरेक्टर साहब काफी दुखी रहते हैं कि यार कुछ लोग तो छोड़ो, जाओ कहीं. छोड़ के जाते हैं 2 साल 5 साल, including Harish Chaudhary. I took leave twice for 2 years and we come right back because we don't want that high salary. So there are 2 issues. One is it has to be oriented in the Indian culture, Indian society. 2, within that there is a school culture, school society. Now that is what we have worked on substantially. What is that culture? Like my wife, for example, and that's true for many of us. She joined as a teacher in a school in Delhi and stayed there for 32 years. And every time I told her, look, you can get a higher salary. She said, no, I can say the same, which I saw the best teachers in Finland and Australia. You see, 2, I think again and again we're raising a question of quality of teachers. Yes, absolutely right. We do not have a bank across the country of high quality teachers, high quality engineers, high quality architects, high quality pilots, high quality mariners, etc., etc. They have to be made. Now the big difference is that in, let's say, chartered accountants, for example, if they clear their chartered accountancy, their knowledge base is good enough, attitudes are not too important. If they know their job, that's good enough. Same for marine, of course, you have the managerial issues, of course, serious managerial issues. But you go through a rigorous program. Teachers, my belief is, and that's what we worked on, अच्छे teachers नहीं मिलेंगे. You have to make them. And that is what we are working on. That can be initially in 6 to 8 months and subsequently lifelong can we make good teachers. The second question was, Himanshu, can I take a minute? One more question was coming is, when children are ahead of the teacher, what do we do? I have this issue. So my students, when I start the course, I know a little more than them about that course. When I'm midway with the course, they know as much. When I'm towards the end of the course, they know much more than what I do. And then my answer becomes very simple. Hey, I don't know, let's learn. And co-learning is an art. So teachers should have to co-learn from the students and have the confidence to say, there are some things I know more than you, there are some things I know less than you, and co-learn. Unfortunately, for whatever reason, if you talk of the average teaching community, they are not trained in co-learning and they're extremely afraid of saying, I don't know. I say that very often in my class. I think the COVID teaches at least teachers to go online. So Yeah. I mean, we need some some breaker, They learn. some trigger A lot of to teachers learn. do that. But the best learning is from the students. My students ask me, sir, what is Blue Ocean strategy? I said, I don't know. You find out. ChatGPT, Gemini, Claude, make a presentation, show it to me. If I like it, I'll use it. No copyrights. So, one is the knowledge part of it. Knowledge कोई मुश्किल चीज नहीं है.
अब आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, 20 साल से हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, अभी थोड़ी सी तो चेंज हुई हिस्ट्री। पिछले 2-4 साल में हमने हिस्ट्री रीराइट की इंडिया की, पर उसके अलावा तो बाकी हिस्ट्री अधिकतर सेम ही है। हमने भी यूरोप की हिस्ट्री तो नहीं चेंज की, इंडिया की ही चेंज की है। डिबेट ज़्यादा करें। And the teacher is teaching the same thing. I'm fond of saying that a lot of our teachers don't teach physics, they teach history of physics. They don't teach chemistry, they teach history of chemistry. But come back, now we have all the resources and it's not, believe me. I took some time to get used to ChatGPT, to Gemini, to Claude, to paid versions. Even I can do it here at my young age of 65. कोई कठिनाई नहीं है इसमें, provided we become co-learners and move on. Sorry. Are the virtual schools also an option? अभी तो इंडिया में नहीं चल पाए हैं. I know some people who are experimenting with it. Because There are issues with सर, it. बच्चे टीचर से ज़्यादा ज़्यादा जानते होंगे तो टीचर क्या करेगा? एक वैसा ही क्वेश्चन है कि teachers are available online. अगर अंडर 19 प्लेयर का स्टेमिना उसके कोच से ज़्यादा हो गया तो अब कोच की क्या ज़रूरत है? पर कोच की ज़रूरत सिर्फ स्टेमिना के लिए नहीं थी। टीचर का हमेशा से पर्पस था कि बच्चे को अपने से ज़्यादा नॉलेजेबल बनाना है। प्राइमरी स्कूल का पर्पस होता है टू गिव अ फिनिश्ड रॉ मटेरियल विच इज़ अ गुड रीडर, विच कैन आर्टिकुलेट, एक्सप्रेस देमसेल्व्स, आस्क क्वेश्चंस। मिडिल स्कूल का एजेंडा था टू गिव अ सेल्फ लर्नर, टू गिव अ क्लास 9th टीचर। जो सेल्फ लर्नर है और दिन भर पढ़ रहा है वो तो टीचर से ज़्यादा ही जानेगा। अगर आप सेल्फ लर्नर नहीं बना पाए तो टीचर से कम जाने। The thing is, what explains the rise of the tuition centers is greater than the वो हमारे बिजनेस एजेंडा से अलग क्वेश्चन है, लंच में ले लेते हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ आपके साथ डिस्कशन करके। ठीक है। यस Sir, as you mentioned in a slide that good schools reflects good infrastructure and a higher salary. So I have 2 questions on this. Like, first of all, does this good infrastructure ensure us the safety of a child? No, that's the perception. Yes, perception, but on this thing only I want to ask, like as we have seen any incident in the last week in one of the schools, that is also one of the most like good सर, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, प्रोसेसेस भी होते हैं। Sir, that process is also defined. Like, does this lower the confidence of any child or parent? मैं और आप अलग से डिस्कशन कर लेते हैं, अभी ये सेशन का हमारा टाइम था। We had a more than 90-minute session in the last conference in Madras and before that in Delhi on what's a safe school, what are the processes of a safe school, and believe me, a lot of schools don't follow many of these processes. So that's a longer discussion, not only physical safety but cyber safety and so on. So I would like to invite Ashutosh sir to felicitate Himanshu sir. Only reason है कि education भाई बहन है। इंट्रोड्यूस कर देंगे तो क्योंकि अजीत सर से मेरी 1-1.5 साल बात चल रही है, सर आप आराम से स्टेज पे आइए, इंट्रोडक्शन थोड़ा आराम से करूंगा। तो अजीत सर ने बोला पैसा तो हमने पटना में ही कमाया है, तो बोले तुम्हें अगर रियल एस्टेट में कमाना है पैसा, गोवा ओवर छोड़ो, जाओ पटना, स्टार्टिंग वेल्थ वहां जल्दी बनती है। तो पटना चले गए, पटना के पाटिया जी मेरे हैं यहाँ पे, तबीयत भाई मेहताब है। तो पटना में वी आर डेवलपिंग द टाउनशिप सिमिलर वन इन गोवा, जस्ट लाइक दैट, सिमिलर। बट फिर मुझसे बोला गया कि तबीयत ने बोला सर मुझे एक कोई और हेल्प चाहिए, हमारा एक हॉस्पिटल भी उसको भी थोड़ा नेक्स्ट लेवल तक किया जाए।
60,000 रुपये लेके पटना पहुंचे और कमरे दिल्ली से पहुंचा था पटना, पैसा और नहीं है और इसके पहले लोग ने बोला कि मेरी मेडिकल as all businesses it has gone through some tough time, but क्योंकि अब किस भी चीज में DMT का आशीर्वाद हो जाता है वो आगे बढ़ जाती है। तो एज अ कम्युनिटी वी आर सपोर्टिंग अस्पताल के बोर्ड में पूरा सपोर्ट मिला हुआ है DMT का उसको, तो वो अस्पताल पटना में नंबर 1 हो जाएगा 6, 7, 8 महीने 10 महीने बाद, क्योंकि हर कोई टेस्ट देता है सब उसको बनाना है। बिहार में सबसे बड़ा परिवार स्टोरी बनाता है तो बिहार में अगर आप परिवार होगा बिहार में जा रहे हो आप इतने सारे मेडिकल पास करेंगे बच्चों लाइक नॉर्मल मरीजर हो सकता था मैं ना बताता डॉक्टर सतीश जो 65,000 रुपये लेके पहुंचे थे 65,000 if I'm right, और अस्पताल चला रहे वो अपनी जर्नी बताएंगे। तो मैं एक ऐसे मीटिंग में बैठा हुआ था, इन्वेस्टर मीटिंग थी बड़ी बात, जहाँ 100-200 करोड़ रेज कर रहे थे वो हॉस्पिटल खरीदने के लिए। तो मैंने सतीश से बोला थोड़ा इमोशनल करो स्टोरी। बोलो मैं गरीब घर का लड़का हूँ, मेरे घर में बिजली नहीं थी, मैं लालटेन के नीचे पढ़ता था और तब मैंने एक निकाला। तो अजीब बोला नहीं सही बात है, मैं लालटेन में ही पढ़ के मैंने ये निकाला। So that is the struggle that every one of us, most of us in India come from very humble background. माँ बाप का सपोर्ट रहना आप यहाँ आगे बढ़े। सतीश also बनोगे, I guess you will also say that why we need communities like Mahindra to support our journey. पर उसके पहले मैं बोलना चाहूँगा पहला सपोर्ट डाउनटाउन को प्रयोग करना है। कोई सर चलिए बहुत धन्यवाद।
फिर बाद में यहाँ का रुक गई। लेकिन एक चीज मैंने देखा कि आपका थॉट अगर क्लियर है ना कि नहीं मुझे ये करना है, आप विश्वास नहीं करोगे उस टाइम ये दोनों बैठे हुए हैं मेरे पार्टनर, हम लोग 2 बजे 3 बजे रात तक ये सोचते थे कि पैसे कैसे आए हॉस्पिटल। आपको विश्वास नहीं होगा, ये 65,000 रुपये थे और मेरे ससुर जी ने एक नई बनती हुई हॉस्पिटल की एडवांस दी और नेक्स्ट 1 मंथ में पूरा बैलेंस दिया। बट स्टेप बाय स्टेप मैंने रिकॉर्ड 13 डेज में मुझे 25,000 बिना कोलेस्ट्रॉल का मेडिसिन started मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिसमें सारी फैसिलिटी। That hospital becomes number 1 hospital in emergency critical care next 6 months. Even people favor my hospital in place of Medanta भी ओपन हो चुका था उसमें बहुत ही डिप्रेशन हो रहा था, खासकर इंडिया के, खासकर क्वालिटी, खासकर ट्रॉमा जो कि बहुत लोग, क्योंकि जो हमारी टीम थी ना वो मैक्सिमम से ही ट्रॉमा की टीम सर्जरी की टीम तो ये रियली वेरी गुड। आपको विश्वास नहीं होगा, हमने 1 साल में 93 पेशेंट जो हमारे डेड आए थे उनको जीता था 1 ईयर, ऐसे समझ लो। तो आप मोटिवेशन मिला कि नाउ 4 ईयर गोइंग ऑन, नहीं है कि कैश पेशेंट कोई बचेगा, so most probably we will go on the cashless facility and we are generally focusing on bulk of the patient instead of the quality. We want to treat the numbers like the government with money, but thing is we are only focused on